Turn with me to Gospel of Matthew, बाइबल में देखेंगे मत्ती का सुसमाचार the 4th chapter. चौथा अध्याय। Matthew's Gospel, the 4th chapter. मत्ती रचित सुसमाचार चौथा अध्याय। We are reading from verse 17 onwards. और उसकी 17 आयत से आगे को हम पढ़ रहे हैं। From that time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। And they straightway left their nets and followed him. वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। And going from thence saw other two brethren, James the son of Zebedee and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending the nets, and he called them. वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। And they immediately left their nets and their father and followed him. वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। It says in the 17th verse, 17 आयत में लिखा है, From that time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Jesus began his earthly ministry यीशु मसीह ने अपनी पृथ्वी की सेवकाई आरंभ की with preaching the word. वचन को प्रचार करके। He was making known his mission to the people. वो लोगों को अपने उद्देश्य को बता रहा था। Afterwards he will make known the purpose of his coming. उसके बाद वो अपने आने के उद्देश्य को उन्हें बताता है। He said, उसने कहा, I have come to seek and to save that which was lost. मैं इसलिए आया कि उन्हें बचाऊं जो खोए हुए हैं। His mission was very clear. यीशु मसीह का उद्देश्य स्पष्ट था। He did not come here to form a religion, another religion. वो इस दुनिया में एक और धर्म का स्थापना करने नहीं आया था। His purpose was to bring mankind back to God. यीशु मसीह का आने का उद्देश्य मानव जाति को पिता परमेश्वर के पास वापस लौटाना था। We live in times when people are haunting one another to find some error in their life so that they could expose them. हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर लोग ढूंढते हैं कि किसी को वो गलती को ढूंढ ले और उसको लोगों को बताएं। It's become a fashion. और ये किस्म का एक शैली बन गई है। And very openly received by people also. और सुनने वाले भी बुराइयों को सुनते हैं। But Jesus' mission was not like that. परंतु यीशु मसीह का उद्देश्य ऐसा नहीं था। He gave a story about a man having 100 sheep and he lost one. उसने एक मनुष्य की कहानी बताई जहाँ एक व्यक्ति के 100 भेड़ें थी, इसमें से एक खो गई। And he left the 99.
और उस चरवाहे ने 99 भेड़ों को छोड़कर crossed the rivers, नदियों को पार किया, climbed the mountains, पहाड़ों को चढ़ा, and put his own life in danger अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डाला, to find one sheep एक खोई भेड़ को ढूंढने which was lost. जो खोई हुई थी। And then Jesus said, तब यीशु मसीह ने कहा, this man, when he finds a sheep, ये मनुष्य ने जब उस खोई भेड़ को पाया, he carries him on his shoulder वो उसे अपने कंधों पे बिठाता है, and tells his people, rejoice with me. अपने लोगों से कहता, मेरे साथ आनंद मनाओ, This my sheep was lost. क्योंकि ये मेरी एक भेड़ खो गई थी, Now it is found. अब मैंने इसे वापस पा लिया है। Are we losing the essence of Christianity? क्या हम मसीहत के तत्व को खो रहे हैं? Are we losing the very primary things of the gospel? क्या हम सुसमाचार की मूलभूत बातों को खो रहे हैं? The primary thing of the gospel is salvation for man. सुसमाचार का मूलभूत बात मनुष्य जाति के लिए उद्धार है। We got so extensively involved in so much of study, deep study in the Bible. हम इतना ज्यादा बाइबल की गहरी बातों के अध्ययन में चले गए That's forgetting the very primary things which Jesus placed. कि हम यीशु मसीह ने जो बातें बाइबल में प्रारंभिक रखी उसको भूल जा रहे हैं। And then Jesus, concluding his message, said like this: तब यीशु मसीह ने अपने संदेश को अंत करते ऐसा बोला, when one sinner repents, जब एक पापी मन फिराता है, there is joy in heaven. वहां पर स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। Amen. Amen. The angels rejoice. वहां स्वर्गदूत आनंदित होते हैं, Maybe the saints of God rejoice परमेश्वर के संत लोग आनंदित होते हैं when one sinner repents. जब एक पापी कहीं पर भी पश्चाताप करता The है। mission of Jesus is very clear. यीशु मसीह का उद्देश्य स्पष्ट है And he said like this, और उसने ऐसे कहा, on Matthew's Gospel 9 chapter 32 verse, he says like this. मत्ती के 9 के 13 में वो कहता है, He's talking to Pharisees, फरीसियों से बात करते हुए and he says like this: इस प्रकार उनसे कहता है, but go ye and learn what it meaneth, I will have mercy and not sacrifice. इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। Amen. Amen. I did not come here to call the righteous, मैं यहाँ पर धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूँ, but sinners. परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। Whom? किसको? Sinners. पापियों को। Sinners to repentance. पापियों को मन फिराव में लाने के लिए, Because Bible says all have sinned and come short of the glory of God. क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Amen. आमेन। So he had a work to do on this earth. उसके पास एक काम था इस पृथ्वी में करने को। So he gives a call to all the people. वो सब लोगों को एक बुलाहट देता है। The first call: पहली बुलाहट, come unto me all you who labor and are heavy laden, हर एक परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, I will give you rest. मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। You turn to news and there is no rest anywhere. आप समाचार को देखते हैं, वहां कोई विश्राम नहीं है। All over the world, सारी दुनिया भर के अंदर, even in our own country, यहाँ तक कि हमारे देश के अंदर भी, if there is peace, somebody will come and disturb the peace. यदि शांति पूर्वक सब चल रहा है तो कोई आएगा उस शांति को बिगाड़ने के लिए, Because devil is the author of confusion. क्योंकि शैतान गड़बड़ियों का करता है। He loves violence उसे हिंसा पसंद है and he uses people. और वो लोगों को इस्तेमाल करता है। And people who talk and who comment and do all these kind of things are inspired by the evil spirits. और जो बात करते हैं और टिप्पणी करते वो इसी प्रकार शैतान के द्वारा प्रेरित है। Hatred is filled in the heart. लोगों की हृदयों में नफरत भरी गई है And they do not know और वो जानते नहीं है that the wages of sin is death. कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। If not today, यदि आज नहीं, tomorrow, आने वाला कल, every man will have to stand before God. हर एक मनुष्य को परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। Amen. Amen. Whether big or small, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, whatever position they might have in this world, उनका दुनिया में कोई भी पद क्यों ना हो, that day उस दिन you stand before a living and almighty God. हमें जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। Every man should give an account of his own life. हर एक मनुष्य अपने जीवन का लेखा देगा। So this time is a time to prepare our lives for eternity. और इसलिए ये समय है अपने आप को अनंत काल के लिए तैयार करने If का। sin troubles you, यदि पाप आपको विचलित करता है or troubles anybody for that matter, और चाहे किसी को भी हो,
God has come to deal with that sin. परमेश्वर उस पाप का इलाज करने आया। I came not to call the righteous, कहता मैं धर्मियों को बुलाने नहीं but sinners परंतु पापियों को to बुलाने repent. कि वो पश्चाताप करें। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। And remember one thing. और एक बात को याद When रखें, somebody repents, यदि कोई पश्चाताप करता है don't touch their past life, तो उसके पुराने जिंदगी को ना छुएं, because you are touching the blood of Jesus Christ. क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यीशु के लहू को छू रहे हैं। Amen. आमीन। Let's not be foolish in doing that. हम ऐसा करने की मूर्खता ना करें। The world needs rest संसार को आज चैन चाहिए in the mind. उनके मनों में। Newspaper is not worth reading. समाचार पत्र भी अब पढ़ने योग्य नहीं रहा। And if you open the other news channels, you get disgusted. और यदि आप न्यूज़ चैनल खोलें हताश हो जाएंगे। They wait for an opportunity to somehow whip up something, whip up the emotions of people. वे इंतजार करते हैं कि लोगों की भावनाओं को कैसे भड़काएं, But people have begun to understand. परंतु लोग समझने लगे हैं। Amen. आमीन। Because क्योंकि we have been praying that their eyes might be opened. ये कि लोगों की आंखें खुल जाए, The spiritual eyes. उनकी आत्मिक आंखें, They might discern what is darkness and what is light. ताकि वो समझ पाए अंधकार और ज्योति के बीच का अंतर। They may discern what is true and what is वो false. जानने पाए सत्य क्या है और झूठ क्या है। May God give them of His परमेश्वर Spirit अपनी आत्मा में से उन्हें दे to know what is right. कि वे जान पाए कि सही क्या है। The first call of Jesus was, "Come to me." यीशु मसीह का पहला पुकार था, मेरे पास आओ। Amen. आमीन। He did not say, "Go to the synagogue." उसने ये नहीं कहा कि सब आराधनालय जाओ। He did not say, "Go to the scribes and the Pharisees or spiritual leaders," उसने ये नहीं कहा शास्त्री फरीसी और आत्मिक अगुओं के पास जाओ, because they were corrupt themselves. क्योंकि उन दिनों में वो स्वयं ही भ्रष्ट थे। And many of them और उनमें से बहुत से were लोग so self-righteous वो इतने आत्मधार्मिकता में थे that this sinner could not have any place with them. कि ये पापी मनुष्य उनके साथ कोई जगह नहीं पाता। So Jesus is giving invitation to come to Him. इसलिए यीशु मसीह ने निमंत्रण दिया कि लोग उसके पास आएं। We all know this verse. हम सब इस आयत को जानते हैं। Matthew's Gospel 11th chapter 20th verse. मत्ती 11 का 28 It says like this, जहाँ ऐसा लिखा है, "Come to me, हे सब परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ all you labor and heavy laden, और बोझ से दबे हुए लोगों, I will give you rest." मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Amen. आमीन।